नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आपको पता ही है कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है किस्से मुसाफिर के। तो इस किस्से मुसाफिर के जो पहला एपिसोड आपने देखा था उसके अंदर हमने रूट जीटी के बारे में बात की थी। आज सेकंड एपिसोड है जिसमें हमारे पास साथ एक महान हस्ती जो कि राइडिंग वर्ल्ड के अंदर अपना एक अच्छा नाम कमा चुके हैं और काफ़ी कुछ कर चुके हैं, काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। तो चलिए मिलते हैं। जय सर, प्लीज़ कम। हाय सर, कैसे हैं आप? तो जय सर हमारे साथ हैं। सर टेक ए सीट। तो हम शुरू करते हैं जय सर के साथ। तो सर सबसे पहले मैं आपसे आपको तहे दिल से वेलकम करता हूं आपका कि आप आए और अपनी बातें, अपनी जर्नी आप हमारे साथ शेयर करेंगे और हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो राइडिंग आपने शुरू करी, इसका इंस्पिरेशन आपने कहाँ से मिला? कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? कहाँ से स्टार्ट करी आपने? I'm not a man of much words. So I was in college and my uncle was very close to me. He was just 5 years elder to me. So in the first year only he gave me a Bullet 350, which I drove for 3 years. And just after completing the college, I got married. Okay. Immediately at 21. At the age of 21. So immediately I had to give up this biking because I was very much into my business, like 200%. Nothing else, just work. Then I kept on working, and then I joined in 1990 and I was working till 2020, like 7 days, 24 hours. So, because my wife says this, so I believe she's right. So Wife is always right. So 2020 mein COVID came and everything, the business got shut, everything. So I was home for 3 months. Then I thought ki ye kya, 2020 and I've lost 48 years of my life and I've not done what I wanted to do. Then I thought about it और फिर मुझे लगा कि मुझे ये करना है, 5-6 चीज़ें करनी है, उसमें ये भी था एक. Okay. I told my friend. Okay. So means at the age of 48, you actually restarted your Yeah, I journey. restarted, and then because it was COVID, all my stores were closed. So I got to know about this Honda CB 350. So I went to the Honda showroom and I asked them for a ride, test ride, and they said okay, yeah, it's available. I like that Honda very much, CB 350. तो उसने मुझे राइड दिया. काफी रिफाइंड इंजन है उसका. हाँ, it's very smooth. The ignition is very smooth. You started, gear shift is very smooth, clutch is very nice, braking. It's a phenomenal bike, very nice bike. तो वो मेरा फर्स्ट बाइक था. तो मैंने जैसे ही मैं उस पर बैठा, I took for a spin, और the moment I gave the throttle, I said, "Whoa, this is freedom." Freedom was the word, and it got stuck in my mind. I said, "Boy, oh, this is what you were looking all along your life. This is what you need. You don't need anything else. You need your freedom, and this is going to give you your freedom." So from there my journey started. So I bought that Honda. I rode 10,000 kilometers on that, and then my father is very close to me. He gifted me this bike which I am riding now. Which one? So BMW G850 GSA. Okay, 850 GS. Very heavy bike. Yeah. So he gave me this bike, and then उस पे भी मैंने I've done 25,000 kilometers. So your family was the inspiration behind this, or like the first bike when you gave the throttle, that was the inspiration, the point of change? So my family was very supportive. They will never say no to anything to me, whatever I say, because they know he will ask for very very few things in life. तो उनको लगा कि I think we should give him a bike. They gave me the bike. And they gave a very expensive bike. I'm very thankful to my father. So, but he gave me big applaud for his father. Yeah. Thank you. So I got into this, and then I was never interested in the breakfast rides because उसमें adventure नहीं था. So we just go and had prantas and come back. वो kick नहीं मिलता. वो kick था नहीं. तो फिर मुझे पता चला कि there's something called off-roading also. So I started the off-roading. So I got
I got 3-4 programs done for myself for off-roading, how to master off-roading. तो मैंने उसमें 4-5 प्रोग्राम्स किए हैं, वो सब मैंने उसको मास्टर किया। उसके तो लेवल 5 तक या लेवल 4 तक? नहीं, उसमें BMW के तो लेवल 2 होते हैं। ओके। तो BMW के मैंने 2 लेवल किया, Okay. KTM के भी 2 होते हैं, KTM का 1 ही किया। एंड प्राइवेट पीपल आर देयर इन द मार्केट, दे टीच यू हाउ टू डू एडवांस ट्रेनिंग कोर्स। यस। So advanced training I have done 3-4 times with private guys. So I got into this off-roading thing. So now I enjoy that also. So sometimes off-roading we go around Delhi. Near Damdama Lake is there and near Mangar village. There are a lot of off-road, and then Panikot Lake is there. You go around these places for off-roading. And then sometimes the breakfast ride, just to listen to the nonsense of the people. तो बक सुनने के लिए। तो जैसे आप राइड पे जाते रहते हैं, तो कोई एक ऐसी राइड जिसको करने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे मैं अपनी लाइफ का मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, कि यहाँ से मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल एकदम चेंज हो गई इस राइड के बाद? कुछ ऐसा देखने को मिला या कुछ ऐसा करने को मिला? या राइड से कोई लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ। यू कीप ऑन looking at life. Every day is a new day in life. You keep on learning new things in life every day. So even in the ride you learn new things, but even if you're not on a ride, you keep on learning new things every day in life, if you're ready to learn. Right. So every ride is a lesson. Yes. You go out of the house, you learn something. That's a very good point. जो जैसा ने बोली है कि लाइफ आपको रोज कुछ ना कुछ सिखाती है और आपको कुछ ना कुछ नया दे जाती है लाइफ हर मोमेंट पे। वेरी गुड पॉइंट। अब तक की आपकी टफेस्ट राइड कौन सी रही है जो जिसको लग के लगाओ कि यार बस हो गया यार, अब नहीं झेला जा रही है राइड? नहीं, एक्चुअली उसको झेलना होता ही नहीं है, उसको तो एंजॉय करना होता है। सो द मोर द राइड इज टफर, यू नो, it gives you a challenge and you have to accept the challenge. And that is the adventure I'm always looking for in life. तो मैंने स्पीति का राइड किया था, तो उसमें एक पैच आता है फ्रॉम काजा टू चंद्रताल एंड चंद्रताल बैक टू मनाली। यस। तो काजा टू चंद्रताल मैंने कर लिया, जहाँ 40 वाटर बॉडीज हैं। हाँ, विद दिस सेम बाइक, जो ये 250 kg का GS है मेरा, इसको ले गया था मैं। मुझे पता नहीं था कि लाइट वेट जाना चाहिए। हाँ। मुझे बाद में उसका समझ आया, पर मैंने वो कर लिया काजा टू चंद्रताल। बट व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम चंद्रताल टू काजा, तो ऑलमोस्ट 80% वॉज डन, हार्डली 20% वॉज लेफ्ट। तो मुझे लगा कि यार ये हो गया मेरा, नाउ आई एम अ स्पीति राइडर, आई हैव डन इट। तो बाइक बहुत चल रही थी अराउंड 40 की स्पीड पे। तो देयर वाज दिस वैली ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड वाज द माउंटेन। तो सडनली देयर वाज अ स्मॉल पैच ऑफ सैंड। जैसे ही वो सैंड पे आया तो मैंने ब्रेक मारा, लेकिन वो स्लिप हुआ। तो बाइक में ये होता है कि जहाँ आप देखोगे बाइक वहीं जाएगा। मैं देख रहा था वैली की तरफ। आई लैंडेड इनटू द वैली। इट वाज लाइक 8-9 feet डाउन। तो माय बाइक वाज लाइक, एंड आई रिमेंबर आई हैव 2 loud speakers on my bike which I don't play now. That time I was playing and Shankar Bhole Baba ka, all along I was listening to that, and my bike was flying in the air and that music was भगवान के वो चल रहे थे, and I fell. Bike tumbled, same bike 5-6 times. I tumbled and I was wearing the whole gear. Nothing happened to me. मैं उठ के बस बैठ गया। देखा मेरी बाइक पड़ी हुई है। मुझे लग रहा वो बाइक से दिल्ली नहीं जा पाऊंगा। बहुत दुख हुआ कि मुझे वापस किसी गाड़ी में बैठ के जाना। इंसान को अपनी चोट का दर्द नहीं होता ना बाइक की चोट का दर्द होता है। बाइक का बहुत दुख हुआ मुझे। फिर बस किसी तरह बाइक दिल्ली पहुंचाई, उसको ठीक करने दिया। तो उनके पास पार्ट नहीं था, एक BMW वालों के पास। बोले इसको आने में 3 महीने लगेंगे। मैंने सोचा ये 3 महीने काटने मुश्किल हो जाएंगे लाइफ के, तो मैंने एक और बाइक खरीद ली। So I bought a KTM. So now I have 2 bikes. So our KTM I keep for off-roading, BMW I keep for. जैसे आप तो काफ़ी घूमते हैं, काफ़ी आपने ट्रैवलिंग की है, तो ट्रैवलिंग के ऊपर हर पर्सन को, फेलो ट्रैवलर्स या आप बाइकिंग ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो कभी कभी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लोग भी मिल जाते हैं और कभी कभी कुछ अजीब लोग भी मिल जाते हैं। तो ऐसा तो हर तरीके के लोग होते हैं,
तो कभी आपका सामना किसी ऐसे पर्सन से हुआ, चाहे वो अजीब हो चाहे वो इंटरेस्टिंग हो, जो आपकी जहन में मतलब बस के रह गया हो कि बस यार इस ये बंदा तो मैं कभी नहीं भूल सकता, मेरे जो मिला था ट्रिप पे? एक्चुअली मेरा लाइफ का ये फंडा रहा है कि आप जैसे खुद हो आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। क्या बात। तो फिर आई नो व्हाट आई एम, सो आई मीट पीपल लाइक विक्रम and I meet people like Mr. Mukhi and Dr. Mukhi, and now I met my new friend, so Mr. Chatterjee. तो अच्छे लोग ही मिले मुझे, आज तक कोई खराब लोग मिले नहीं हैं, सब तो इंटरेस्टिंग लोग ज्यादा मिले हैं आपको? मतलब आई ऑलवेज मेट ऑनेस्ट पीपल, आई हैव नॉट मेट वो गोलमोल जलेबी वाले लोग नहीं मिले मुझे को, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग मिले हैं। बेसिकली राइडिंग जर्नी, जैसा हम बात कर रहे हैं कि राइडिंग जर्नी हर राइडर के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, तो जैसे हमारे राइडर्स हैं, बहुत सारे राइडर्स ऐसे भी हैं जो सुनेंगे या स्टार्ट करते हैं, तो जस्ट एक मैसेज फॉर देम कि कैसे दोनों वर्क थिंग को या फैमिली थिंग को अपनी राइडिंग के साथ, पैशन के साथ कैसे मैनेज किया जाए? I think it's quite a tough question. I think you have to work every day, you know, with your family. Every day is a challenge with your family. You have to work every day. So if you're working, and then once in a while, if you plan a ride, they will definitely support you because you're always with them. Like 7 days a week, you're with your family, helping them and supporting them. So once in a 3 months or once in 4 months, they will definitely let you go out for your 3-4 day, 5 day ride. Right. So it's a kind of like you have to do something to get something. Not really. You have to really take care of your family, na. So if you're really taking care of your family, why will not the family take care of you? Because this is your need. You know, this is your mental need, your satisfaction, your soul satisfying thing. Riding is your soul satisfying, so this has to be satisfied. If this is not satisfied, तो फिर और चीज़ की कुछ दिक्कत आ सकती है आपको। हाल के लिए हमारे पास इतना ही है आपसे, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड अपने लाइफ की जर्नी के बारे में बताने के लिए और सभी राइडर्स को एक मोटिवेशन फैक्टर देने के लिए कि राइडिंग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स नॉट अबाउट योर बॉडी, इट्स नॉट अबाउट योर प्रॉब्लम्स और समथिंग लाइक दैट। यू कैन स्टार्ट एनीवेयर इफ यू हैव द पैशन। एब्सोल्युटली। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, तो थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू।